Assalamu alaikum everyone. First of all, Babar. Where is Babar? He's left? Okay, so please pass my message to Babar. He's doing a phenomenal work. Babar, you're doing a phenomenal job. A fitter Pakistan is a successful Pakistan. So more power to you. Thank you. Okay, so it always feels great to come to Lahore. Especially हम कराची वालों को बड़ा अच्छा लगता है when we can drive around without any potholes. So I always feel great and I love the winters of Lahore. My name is Shahrukh Nadeem and most of the people on social media know me as Book Buddy. So मेरी जो आज की discussion है उसको मैं दो हिस्सों में divide करूंगा. The world of social media has made us narcissist and self-obsessive. मेरे अंदर भी थोड़ी ये traits मौजूद हैं, but I'll try to contain it. Because today, all of the people who are sitting over here, it's more about you rather than me. मेरे बारे में अगर आपने सर्च करना है, आप YouTube के ऊपर जाएंगे, आप बुक बडी टाइप करेंगे, आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी. So पहले मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी बता देता हूँ, and then of course we'll see. And I would love to have questions from you, कि how can you make it big on social media? So मेरी एक personal saying बड़ी मुझे Aristotle की एक saying है, it's attributed to him, it's very famous and it's very provocative. तो Aristotle ने जिसको उर्दू में अरस्तु कहते हैं, उन्होंने कहा था कि in a society where there is injustice, there will be two people who will not respond or who will not fight the status quo. One is the timid and other is the selfish. एक सोसाइटी जहां पे नाइंसाफी होगी, उस सोसाइटी के अंदर दो तरह के लोग होंगे जो स्टेटस को फाइट नहीं करेंगे. एक बुज़दिल और एक सेल्फिश. मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा टर्न अराउंड किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस हैज to do with my personal journey on social media. In a society where there is lack of education, there is lack of knowledge, there is irrationality and there is dogmatism, तो हर वो शख्स जो अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल नहीं करेगा डिसेमिनेट करने के लिए, लोगों की तरफ अपने इल्म को पहुंचाने के लिए, वो एक क्राइम कमिट करेगा. तो आप में से सब लोग जो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, all of you are educated, आपने 14 जमातें 16 जमातें पढ़ी होंगी. So the first good news that I want to give to you is that all of you are eligible. In fact, ये आपके ऊपर obligation है, आपकी responsibility है कि आप अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, अपने इल्म को, अपने विजडम को, अपने हिकमत को लोगों की तरफ डिसेमिनेट करें, फैलाएं. So with that thought, मैंने अपना ये चैनल बुक बडी को स्टार्ट किया. हुआ ये, what was the trigger point? I teach at leading business schools in Karachi. तो मैं जब BBA और MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो I used to give references of the books. अब अगर how many students are here जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है या बिजनेस पढ़ा हुआ है? आपने BBA MBA के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? A few at the back. So अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं और आपने गुड टू ग्रेट नहीं पढ़ी हुई, आपने पीटर थील की 0 to 1 नहीं पढ़ी हुई, आपने टॉम पीटर्स की इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस नहीं पढ़ी हुई, तो देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. क्योंकि आजकल की दुनिया में, नाउ हियर्स द बैड न्यूज, कि बाय द टाइम यू विल पास आउट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज, whatever knowledge you have learned in your 4 years of course, that would have already become obsolete. जब आप यूनिवर्सिटी से पास होके बाहर निकलेंगे तो आपकी नॉलेज ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुकी होगी, आप ऑब्सोलीट हो चुके होंगे. तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को you are not abreast with the modern trends and technology and what is going on in the field of your particular field of interest, so you will embark on your journey towards obsolescence. तो मुझे जब वो blank faces दिखते थे तो मैंने सोचा कि यार someone needs to do something. तो मैं अपनी जिंदगी एक प्रिंसिपल पे गुजारता हूँ
एक मेरा बड़ा फेवरेट कोटेशन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली सेड इट, कि आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ द पर्सन हु विल चेंज द वर्ल्ड until I realized that person was me. So with that thought, मैंने किताबों के जरिए लोगों को enlighten करना शुरू किया, and with the passage of time, the thing started growing, and today, Book Buddy is the biggest channel in the book reading and informative genre in Pakistan. मैं अपनी जर्नी आपको बताऊं कि, और इसी से जो हम मेरी गुफ्तगू का सेकंड सेशन है वो कनेक्टेड है, कि in the first 3.5 years of my journey, I had only 8,000 subscribers. 8,000 पहले 3.5 सालों में. आखिरी के जो 1.5 साल हैं, we have gathered around 240,000 subscribers. So that goes to show the power of compound effect. और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं. ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, लेकिन अगर आप अपनी कंटेंट जर्नी को परसू करना चाहते हैं, उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसका एक मैं आपको तरीकेकार बता देता हूं. अगर अगले 10 मिनट आपने गौर से सुन लिया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. एक छोटी सी स्टोरी. देयर इज एन आइलैंड इन जापान नोन एज ओकिनावा. ओकिनावा के लोग, दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस ओकिनावा में मौजूद है. नाउ व्हाट आर सेंटिनेरियंस? सेंटिनेरियंस वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 100 साल क्रॉस कर चुकी होती है. तो जब साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने पता करना शुरू किया कि यार व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द पीपल एज इन ओकिनावा, व्हाट्स गोइंग ऑन? ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन्स खाते हैं, क्लाइमेट अच्छा है, वेदर अच्छा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस दे गॉट होल्ड ऑफ दैट. हाउएवर, जो मेन रीजन थी, जो रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को पता लगी, वो ये, जो ओकिनावा के लोग हैं, ये अपनी जिंदगी एक प्रिंसिपल पे गुजारते हैं जिसका नाम है इकिगाई. नाउ व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई is a Japanese word which means living a meaningful, purpose-driven, objective-driven life. तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप भी अपनी जिंदगी के पर्पस को पहचान सकते हैं. अब अपने माइंड के अंदर एक सर्कल को विजुअलाइज करें. विजुअलाइज अ सर्कल. उस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें. पहला क्वाड्रेंट, व्हाट आर यू गुड एट? आज जरा जाके सोने से पहले एक पेपर के ऊपर आपने लिखना है कि वो कौन सी एक ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में विच यू आर गुड एट. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब BBA MBA कर रहा था, आई वॉज गुड एट गिविंग प्रेजेंटेशंस. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी बनाता था. आई यूज्ड टू गिव प्रेजेंटेशंस एंड टीचर्स वर हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी, सो आई वाज गुड एट इट. हाउएवर, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. पहला तो आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गुड एट XYZ, आप म्यूजिशियन अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी हैं, आप maybe you prosecute well. There can be n number of things you can be good at. But the second thing is, do you love it? क्या आपको उस चीज से मोहब्बत है या नहीं? तो अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, I might have been perhaps good at presentations, but hell, I used to hate it. PowerPoint after PowerPoint बनाना, slides बनाना, I never used to enjoy it. So आपने एक ऐसी चीज तलाश करनी है या 2 ऐसी चीजें तलाश करें in which you are good at and you love. Now the third thing, does the world need it? क्या जो चीज आपको पसंद है या जिसमें आप अच्छे हैं और जिससे आपको प्यार है, क्या दुनिया की भी उसको जरूरत है कि नहीं? For instance, someone is good at guitaring. He is good at it, he loves it, the world needs it. Now the fourth quadrant, can you be paid for it? क्या जिस चीज में आप अच्छे हैं, जिस चीज से आपको प्यार है, जिसकी दुनिया को भी जरूरत है, the world also needs it and the world is willing to pay you for that. अब होता ये है कि जब आप कंटेंट जर्नी को अपनी स्टार्ट करते हैं, आपको पहली 3 चीजें मिल जाती हैं. मेहनत करेंगे, पहली 3 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो चौथी चीज है ना, कैन यू बी पेड फॉर इट, इसमें वक्त लगता है. और यहीं पे कंटेंट क्रिएटर्स हिम्मत हार जाते हैं.
So if someone asks me कि YouTube पे कामयाबी के लिए या social media पे कामयाबी के लिए कोई एक skill बता दें, it has to be perseverance and nothing else. Your perseverance will take you through. Long-term commitment and dedication towards a worthy ideal will take you through. People are, ये time up का आ रहा है, so I'll just try to finish. Just give me 60 to 90 seconds more. So, अगर आप में से कोई एस्पिरेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपना नाम बनाना चाहते हैं, पहली चीज याद रख लें, एच इट इन स्टोन, पत्थर पे लकीर है, पैसे कमाने के लिए आएंगे, कभी भी पैसे नहीं कमाएंगे। अगर आपकी एस्पिरेशन है कि मैं यूट्यूब से मिलियनेयर हो जाऊंगा, ये बात मेरी याद रखिएगा, इट विल नेवर हैपन। ओनली कम इन दिस फील्ड if you are obsessively, passionately, madly in love with what you are trying to do. मैं किताबों के ऊपर कंटेंट बनाता हूं, मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा है किताबें। आई हैव अ लाइब्रेरी इन माई हाउस, 2-3 हजार किताबें मौजूद हैं, तो मेरे लिए तो घर पे कंटेंट पड़ा हुआ था एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस आउट ऑफ इट। सो आपने ये डिसाइड करना है कि व्हाट आर यू एब्सोल्युटली मैडली इन लव विद, और उसके बाद फिर आपने ये नहीं देखना कि मेरी वीडियोस पे 10 व्यूज आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं या 1000 आ रहे हैं। इफ यू गो द लॉन्ग वे यू विल बी सक्सेसफुल। एंड आई विल एंड माय टॉक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी जबरदस्त खूबसूरत लाइंस हैं, दैट वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव माय प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। थैंक यू सो मच।